हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय डॉक्टर के। जैसे कि आपको पता है, लास्ट चैप्टर में, लास्ट वीडियो में हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। वी नो व्हाट आर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, व्हाट इज द रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. But before that, we must know what are the postulates of special theory of relativity. As I already told you, special theory of relativity, we discussed inertial frame of reference. Inertial frame of reference means the frame of reference which is moving with the comparable velocity of light, or we can say v is approximately equal to c. In that frame of reference is called inertial frame of reference. Now the question arises is, what are the postulates of special theory of relativity? The first postulate is all laws of physics are same. All laws of physics are same in all inertial frame of reference. What does it mean? It means suppose you are in the rest frame of reference. आप ground पे हैं and any event is taking place. Event means suppose कोई ball है and ball is going downwards. If you will fall the ball, it will going downwards. And suppose there is one aeroplane, another frame of reference, which is moving with the speed of 800 km per hour. एक एरोप्लेन है जो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है. इसमें अगर कोई बॉल फेंका जाएगा, ये भी डाउनवर्ड ही आएगा, इट विल नॉट गो अपवर्ड. So it means what is the law of physics, law of gravity, that the ball which is called falling, it will going downwards only, not it will go upwards. Similarly, it will happen in the moving frame of reference, which is moving with the constant velocity 800 km per hour. The first law of special theory, first postulate of special theory of relativity is all laws of physics are same in all the inertial frame of reference. And the second postulate is velocity of light is constant, or it will remain same in vacuum. Discuss Galilean transformation equation. But Galilean transformation equation failed to explain the phenomenon in which the bodies are moving comparable with the velocity of light. तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लेते हैं. तो उसे सॉल्व करने के लिए अगेन हम टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे. वन इज rest frame of reference, one observer is here, and another frame S dash, which were coinciding here only, but after time t it will reach here, and now this is another frame of reference S dash जो constant velocity v से move कर रही है. और यहाँ पे ऑब्जर्वर क्या है? O डैश है. अगेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस डैश फ्रेम क्या होंगे हमारे पास? एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश एंड टी डैश. और जो ऑब्जर्वर ओ से देखेगा उसके लिए कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स, वाई, जेड एंड टी. अगेन हमने क्या रिलेशन निकालना है? एक्स डैश एंड एक्स में जो क्या होगा? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगी. बट हियर द बॉडीज are moving, your frame are moving with the constant velocity v, but comparable to the velocity of light. उस केस में हमारे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होंगी? वो हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में स्टडी करते हैं. तो सपोज एज वी नो फ्रॉम द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, x dash is equal to x minus vt if your frame is moving in the x direction. Now we will suppose here one constant k. And this is equation 1. If x dash is equal to this, then what will be its reverse transformation equation? X is equal to k x dash plus vt dash. This will be equation 2. Now what we will do for simplicity,
we will put the value of x dash in equation 2. इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा कि हमने इसमें रखना है x में, इससे आपकी इक्वेशन जो है बहुत इजी हो जाएगी सॉल्व करना. तो क्या हम करेंगे, x इज इक्वल टू k. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x डैश? इट इज k x minus vt, and then kx minus vt, and then plus vt dash. Instead of x dash, we have written here kx minus vt. Now we can write it here as x upon k is equal to kx minus kvt plus vt dash. Now we are interested in finding the value of vt dash. So vt dash is equal to x upon k minus kx plus kvt. Now what we will do here, vt dash is equal to x upon k minus kx plus kvt. So it means you can also write it as kvt plus x upon k minus kx. Vt dash is equal to this. And what will be the value of t dash? T dash is equal to kt plus x upon kv minus kx upon v. Now for simplicity, we will take kx upon v common. For this here, it should, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, kx upon v होना चाहिए. तो यहाँ kx upon v करने के लिए हम k से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब देखो यहाँ से आप kx upon v को कॉमन ले सकते हैं. यहाँ से kx upon v कॉमन आ जाएगा, यहाँ से kx upon v कॉमन आ जाएगा. तो इट मीन्स t डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, t डैश इज इक्वल टू kt प्लस आप क्या कॉमन लेंगे, kx अपॉन v अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे यहाँ kx अपॉन v कॉमन लिया, प्लस का कॉमन लिया, तो यहाँ पे ये टर्म हो जाएगा आपके पास माइनस 1 माइनस, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने प्लस बाहर, प्लस यहाँ पे था, पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, प्लस बाहर है तो kx अपॉन v अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन k स्क्वायर एंड माइनस 1. Here kx upon v common, यहाँ 1 upon k square minus 1. kx upon v is common. Now we will put it like this, kt plus or minus we will take out minus kx upon v, then it will become 1 minus 1 upon k. So this is the value of t dash. T dash is equal to this. kt minus kx upon v 1 minus 1 upon k square. This suppose this equation is 3. Now what we will do, we will find the value of k. How we will find the value of k? You know that suppose there is some flash of light. इस फ्रेम में कोई फ्लैश ऑफ लाइट होती है. फ्लैश ऑफ लाइट हमें पता है, अगर फ्लैश ऑफ लाइट है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, c. तो लाइट को यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम कितनी डिस्टेंस कवर करेगी. सपोज यहाँ पे लाइट है, g इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. लाइट को इस पॉइंट से इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पहुंचने में टाइम डिस्टेंस कितनी कवर होगी, c t डैश. इट मीन्स इस फ्रेम के लिए x डैश इज इक्वल टू c t डैश. कहाँ कौन ऑब्जर्वर जो यहाँ से देखेगा तो उसको लगेगा कि ये डिस्टेंस कितनी, लाइट कौन से डिस्टेंस पे फ्लैश ऑफ लाइट हो रही है, ct डैश. अगर कोई ऑब्जर्वर रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेगा तो उसे लगेगा कि जो फ्लैश ऑफ लाइट है, जैसे सपोज कोई क्रैकर है, क्रैकर चल रहा है, तो उसे लगेगा कि वो क्रैकर उसकी फ्रेम से कितनी डिस्टेंस पे है, c इंटू टी. We have taken c into t. Why? Because c
according to the second postulate of special theory of relativity, C will remain constant in all inertial frame of reference. तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपके पास C की वैल्यू ये आ गई, C T डैश, इट इज द X डैश, और इस फ्रेम के अकॉर्डिंगली X इज इक्वल टू सी टी। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक X डैश इज इक्वल टू सी टी डैश एंड अनदर इज X इज इक्वल टू सी टी। X dash is equal to CT dash and X is equal to CT. Now from the first equation X dash is equal to V, हमने क्या सपोज किया था, KX minus VT। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे X dash की वैल्यू रख देंगे, तो इट मीन CT dash is equal to क्या हो जाएगा, K, और X की वैल्यू क्या है, CT minus VT। दिस इज इक्वेशन 4। अगर ये CT डैश की वैल्यू है और अगर हमें CT की निकालनी है तो अकॉर्डिंग टू इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, तो इट विल बी CT डैश प्लस VT डैश। दिस इज इक्वेशन 5। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 इंटू इक्वेशन 5, 4 इंटू इक्वेशन 5, तो उससे क्या आ जाएगा, इंटू सी टी डैश इज इक्वल टू, यहाँ अगर हम t कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा के टी सी माइनस वी, और इस इक्वेशन में अगेन के टी डैश सी प्लस वी, तो देन इट इज सी स्क्वायर के टी डैश इज इक्वल टू के स्क्वायर टी टी डैश and a plus b into a minus b is a square minus b square. It means it will become c square minus b square. Very simple. अब क्या होगा, यहाँ से t dash and ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो it means c square upon k square is equal to this. But we are interested in finding this factor k. तो k की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास है ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने क्या फाइंड किया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, बट यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर, तो इट मीन्स के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, के स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और के इज इक्वल टू, और के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका डेनोमिनेटर में चला जाएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, or you can write it as इसको आप कैसे लिख सकते हो, k is equal to, ये 1 हो गया, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यू कैन से दिस इज k स्क्वायर, k is equal to 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आपकी k की वैल्यू आ गई, एंड व्हाट इज k, k इज दैट कांस्टेंट, और यू कैन से लॉरेंस वेक्टर। तो x डैश इज इक्वल टू, हमने सपोज किया था k x माइनस वी टी, अब k की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर x माइनस वी टी। दिस इज द स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x dash and y dash is equal to y, z dash is equal to z. Now we are interested in finding the value of t dash, क्योंकि अभी हमने t dash की वैल्यू नहीं निकाली। अगर हम आपको पता हो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3 हमारे पास t dash की वैल्यू क्या आई थी, दिस इज द वैल्यू ऑफ t dash। ये t dash की वैल्यू है, this is the value of t dash, t dash is equal to t dash is equal to kt minus, I think it is here, this t dash is equal to kt minus kx upon v 1 minus 1 upon k square। अब आप क्या करोगे, जहां पे k है उसकी जगह you will put the value of 1 upon under root 1 minus v square upon c square, so you can find easily
द वैल्यू ऑफ टी डैश। तो कैसे निकालोगे? टी डैश इज इक्वल टू के की वैल्यू, यहाँ पे आप के कॉमन भी ले सकते हो, अगर के कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा टी माइनस एक्स अपॉन वी 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर। Now what is the value of k? It is 1 upon under root 1 minus k, 1 upon k is equal to, k की हमने क्या वैल्यू निकाली है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब आप ये वैल्यू कहाँ यहाँ पे रख देंगे तो आपके पास टी डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो इट मीन्स टी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टी माइनस एक्स अपॉन वी 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर। अब देखो के इज इक्वल टू क्या है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और अगर के स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इफ यू विल यूज 1 अपॉन के स्क्वायर इट मीन्स इट विल इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, पर बाहर क्या है? माइनस है, देन इट विल बिकम प्लस एंड दिस कैंसिल आउट। तो आपके पास इक्वेशन आ गई टी माइनस एक्स अपॉन वी, एंड दिस वी से ये वी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। आपको अगर याद हो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में टी डैश इज इक्वल टू टी था, बस इस केस में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये कब होता है? जब हमारी फ्रेम कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट मूव करती है, उस केस में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम लगाते हैं। तो आपको मेरी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इजीली अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस माय साइड। I will meet you in my next video. Thank you so much.